invocation with Namo Hare Krishna Prabhu. Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Srimad Bhagavad Gita ki Jai Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. So welcome back. Today we are going to have a general overview session. Today is the 9th general overview session of Bhagavad Gita. भगवद गीता का अवलोकन करेंगे आज। ऐसे सत्र में ये श्रृंखला में ये 9th सेशन है। We are already in the 125th session of भगवद गीता सीरीज। 125वां अध्याय है आज। So we will begin with why we should read Bhagavad Gita. So there is a Sanskrit verse which says Yasmin Vignatam Sarvam Eva Vignatam Bhavati. Yasmin Vignatam, just by knowing, we're talking about Krishna. And how do we know Krishna? We will come to know about Krishna by 2 scriptures. One is भागवतम, श्रीमद् भागवतम। एक श्रीमद् भागवतम है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, उल्लेखन किया गया है। So it mentioned pastimes of Lord Krishna in his various forms, starting from his very first form, very first avatara, up to his original form of Krishna, where he performed his Krishna Leela. So Prabhupada introduces us to the Supreme Lord and takes us through the Bhagavatam from Canto 1 to Canto 9 by explaining the greatness of the Lord. And in the 10th canto, he introduces us to the Supreme Personality of Godhead in his original form and how he performed his pastimes in the Vrindavan Dham when he came in his original form along with his associates and the Dham itself. तो भगवान श्री कृष्णा के बारे में पहले तो हम श्रीमद् भागवतम से जान सकते हैं। दूसरा, second book is from scripture is from Srimad Bhagavad Gita. Now, what is unique about Srimad Bhagavad Gita? Whereas all the other scriptures, including Srimad Bhagavatam, is the narration of his pastimes as seen by his devotees. Whereas Bhagavad Gita, लेकिन भगवद गीता क्या है? स्वयं पद्मनाभ श्रीमुख विनिश्रितः. So from the Lord's own mouth, Lord is explaining about who he is, कौन भगवान है। तो अपना इंट्रोडक्शन भगवान श्री कृष्ण खुद दे रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवद गीता है। And when we know Krishna, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति, so then we will have all the knowledge in the world, which means we know everything in the world, because Krishna is absolute. क्योंकि कृष्णा परिपूर्ण है। कृष्णा के बारे में जब हम जानेंगे पूर्ण तरीके से, then we will be able to know about everything else. So interestingly, there are some names in Mahabharata and Bhagavad Gita, and why were such names given, though they indicate crookedness? For example, Duryodhana. Duryodhana, what is the implied meaning of Duryodhana? एक अर्थ आता है दुर्योधन नाम का, wicked soldier or crooked soldier, an unreasonable soldier. एक ऐसा योद्धा जो we can say that क्रूरी है, जो अन्याय करता है, ये डिपिक्ट करता है दुर्योधना नाम। लेकिन that is not the way he was named.
दुर्योधना का मतलब है वन हु इज डिफिकल्ट टू विन ओवर, which is a good quality of a soldier, one who is difficult to win over. But it can also mean, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक stubborn soldier है, आप न्याय और तर्क से उसको जीत नहीं सकते, बल से ही जीतना पड़ेगा। दूसरा दुशासना, तो दुशासना ऐसा क्यों नाम रख दिया? दुशासना, 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 तो अर्थ क्या आ रहा है? वन हु इज विदाउट डिसिप्लिन, जो कोई शासन को मानता नहीं है, जिसका जीवन में कोई शासन नहीं है। बट एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका? एक्चुअल मीनिंग इज वन हु चास्टाइजेस द इनडिसिप्लिन, जो जो शासन को नहीं पालता है, उसको दंडित करता है, वो दुशासन है। तो विद दिस इंटेंट द नेम्स वर गिवन, नॉट दैट विद द करंट इम्प्लाइड मीनिंग्स। However, they also mean, it also means that one who is without discipline. So it suits his character when we take this meaning. Dhritarashtra. Why is somebody's name kept as Dhritarashtra? Whereas the implied meaning is coming as one who clings on to nation or land. जो भूमि के टुकड़े पे या राज्य को हड़प के रखना चाहता है। That is what it means by the implied meaning. But actual meaning क्या है धृतराष्ट्र का? One who holds the nation together, जो राष्ट्र को एकत्व में उसको रखता है। He holds this nation together. This is the actual meaning of Dhritarashtra. But the implied meaning is coming as one who clings on to the nation, one who clings on to power by hook or crook, which is suiting his character. So implied meaning भी valid हो जाता है यहाँ पे। फिर युधिष्ठिरा is one who is stable in the battles of life. और इसके लिए implied meaning और actual meaning दोनों यही है। इसका युधिष्ठिरा का actual meaning क्या है? Stable in all the battles of life. Battle में भी और in the battles of life. जीवन के संघर्ष में वो अपना ध्रुति को खोएगा नहीं। He will not lose his sobriety in the battles when he's fighting the battles of life. So इसका implied meaning भी वही है, इसका actual meaning भी वही है. So because he is true to his character, whereas Duryodhana or Dushasana was very manipulative, very diplomatic. He would become very sweet, sugary. जब उसको चाहिए, जब उसको पता है उसका फायदा है, तो उस जगह पे वो बहुत ही स्वीट बातें करता था। जैसे कि बलराम भैया को दुर्योधन से बहुत प्यार था, क्योंकि दुर्योधन न्यू हाउ इफ कृष्णा इज इन द साइड ऑफ पांडवास, उसके बड़े भाई को मैं संतुष्ट करूंगा तो वो मेरे पक्ष में रहेंगे। ऑफ कोर्स बलराम was not able to be on the side of Duryodhana in the battle of Kurukshetra. वो तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं। Krishna is supreme Lord. He's sitting in everyone's heart. So finally he takes the shots. तो जो कृष्ण भगवान परमात्मा बन के सबके हृदय में बैठे हैं, तो अंत में वही होता है जो कृष्ण को चाहिए। जैसे कि बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, लेकिन कृष्णा वो होने नहीं दिए। फाइनली वही हुआ। वो तो बड़े भैया को वो बहुत मानते थे, लेकिन कुछ ऐसे विषय में कृष्णा वुड ऑलवेज एंड अप मेकिंग श्योर दैट व्हाट हिज प्लान इज दैट ओनली हैपेंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीवन, जिसके लिए जिसमें सबका फायदा हो। So by understanding one book, Bhagavad Gita as it is, so Prabhupada जी का ये जो पुस्तक है भगवद गीता as it is, ये यथारूप भगवद गीता हमें पढ़ने से, so we will अगर तवर टू तवर हम पढ़ेंगे, we will know everything that is to be known. तो ये एक ऐसा शास्त्र है, यूनिक वन, 700 श्लोक है, लिमिटेड नंबर ऑफ श्लोकास, लेकिन अनलिमिटेड नॉलेज। ये केवल भगवान के लिए पॉसिबल है। इट इज इनकंसीवेबल हाउ अ लिमिटेड
700 वर्स्ड भगवत गीता इज ग्रेटर देन एनी स्क्रिप्चर। लाखों हजारों जो श्लोक का स्क्रिप्चर्स है उससे भी ऊंचा इसका दर्जा है, जिसमें केवल 700 श्लोक है। तो इट इज समथिंग इनकंसीवेबल, अचिंत्य। सो लॉर्ड इज अचिंत्य गुण स्वरूपा, लॉर्ड्स लीला इज ऑल्सो अचिंत्य लीला। we cannot understand his pastimes fully. So how in 700 shlokas Krishna, of course not all shlokas he spoke, but it is all a part of Gita. How within those 700 shlokas हमें दुनिया भर का ज्ञान और उससे भी ज्यादा हमें मिल सकता है। तो ये it is something that we will always be enigmatically wondering about. So it is not just enough to hear Bhagavad Gita. तो भगवद गीता को केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट द टीचिंग्स इन आवर लाइफ। भगवद गीता का बोधन सुन के तभी फायदा होगा जब हम उसमें दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस है भगवान श्री कृष्णा का, वो अपने जीवन में हम उतारेंगे। एंड इट मस्ट बी इंटरनलाइज्ड। तो वो हमारा जीवन का एक अविभाज्य अंग हो जाना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अ रेफरेंस मैनुअल, इट इज ऑल्सो द ऑपरेटर मैनुअल फॉर अस। रेफरेंस मैनुअल मतलब जब खराब स्थिति होगा तब रेफर करते हैं, नहीं, जीवन के हर पहलू में, जीवन की हर पथ पे हमें इसकी रेफरेंस से ही काम बढ़ाना है। सो इट मस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता मस्ट बिकम द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, must become the source of all solutions. हमें सारे solutions भगवद गीता के आधार पे लेना है। Material problems have spiritual solutions, क्योंकि material solutions से आपको तत्काल रिलीफ मिलेगा, लेकिन it will not be a long term relief. फिर दूसरे प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। लेकिन भगवद गीता या कोई शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र के एडवाइजर्स पे जब हम अपना जीवन को निरूपित करते हैं, सो व्हेन वी गेट स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस फॉर आवर मटेरियल प्रॉब्लम्स, वी गेट परमानेंट सॉल्यूशंस। तो तत्काल नहीं होगा ये, इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर द बेटर। हमारा जीवन अच्छाई की ओर बढ़ेगा और हमारा जीवन बदलेगा। So when we try to tell others to take up spirituality, तो it's such an important thing। और कृष्णा को कैसा भक्त पसंद है भगवद गीता में उन्होंने खुद बताया है। ऐसा भक्त जो मेरे उपदेश है सबके पास जो लेके जाएगा, सबको समझाएगा, सबको देगा, फैसिलिटेट करेगा, वो मेरे लिए अतीव प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है ऐसे भक्त। सो हाउ टू बिकम अ वेरी डियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड? बाय स्प्रेडिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गीता, बाय फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनलाइजिंग द नॉलेज ऑफ गीता। पहले हमें भगवद गीता को जानना है, हमारे जीवन में उतारना है, फिर वो हमें दूसरे हमारे बंधुओं को, फिर स्ट्रेंजर्स को भी हमें उपहार देना है। ये एक ऐसा मैनुअल है जो सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी से सबका उद्धार होगा। तो लेकिन जब हम ऐसे करते हैं, many of you might have spoken to your relatives, your family members to take advantage of this spiritual knowledge. तो अर्जुन ने कृष्णा को पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में 5 ऐसे रीजंस बताया क्यों वो इस कुरुक्षेत्र युद्ध को नहीं लड़ना चाहता। Why he does not want to fight this battle of Kurukshetra out of temporary ignorance. तो हम भी ये कर चुके हैं। जब हमारे प्रीचर्स हमें भगवद गीता पढ़ने का एडवाइस दिया था, तो हम भी बहुत रेजिस्ट कर चुके हैं, अपना अपना रीजंस बता चुके हैं, लगभग वही रीजन जो अर्जुन ने दिया भगवान श्री कृष्णा को। तो कैसे? लेट अस सी। You might have heard these 5 reasons from the different people you approach to. जब आप बोलते माला जपा कीजिए, हरे कृष्णा मंत्र जपा कीजिए,
भगवत गीता पढ़िए, मंदिर आइए, तो यही 5 रीजन होगा, समवेयर क्लोज बाय, तो यू विल बी सरप्राइज्ड। और आप अपने जीवन में भी झांक सकते हैं, क्योंकि आप भी भक्त बनने से पहले यही यही रीजंस देते थे। क्या है पहला रीजन? अर्जुन ने जो दिया था, व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन? ही गिव कंपैशन। वो बोल रहा है कैसे मैं मार सकता हूँ, मुझे दया करना चाहिए। तो रणभूमि में आके दया की बात कर रहा है योद्धा, वो तो रणभूमि के बाहर करना है, रण छेड़ने से पहले करना है। जब दया का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, तब आप युद्ध भूमि में आए हो। लेकिन वही क्या बोलते हैं रीजन लेके अर्जुन फिर से बोल रहे हैं कंपैशन, ये हम गलत कर रहे हैं, मारना गलत है। सो और लोग क्या बोलेंगे, आप भगवत गीता पढ़ो बोल के या मंदिर आओ जपा करो, बोलेंगे नहीं मानव सेवा करना है, ये क्या है, ये मंदिर पूजा पाठ ये कुछ नहीं है, मानव सेवा करना चाहिए। देखिए दया, कंपैशन, इट इज नॉट रॉन्ग मानव सेवा, बट दे डू नॉट नो, दे ऑलवेज से थिंक दैट मानव सेवा एंड माधव सेवा आर डिफरेंट। जब हम माधव सेवा करेंगे तो हम सब कृष्णा के अविभाज्य कृष्णा के अंग हैं। तो जब मैं कृष्णा का सेवा करूंगा, माधव का सेवा करूंगा, तो मानव का सेवा तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। जब आप मंदिर से जुड़ेंगे, मंदिर में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो लोक कल्याण की कार्यक्रम हैं, और उसमें आप भाग लेंगे तो मानव सेवा तो हो ही रहा है। मानव क्या, हर प्राणी का, हर पंछी का, हर कीड़े मकोड़े का सेवा हो रहा है, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्णा का सेवा कर रहे हैं। दूसरा रीजन जो देते हैं एंजॉयमेंट, अरे मंदिर आएंगे फिर आप बोलेंगे ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, नहीं नहीं हमें बहुत एंजॉय करना है अभी, दिस इज नॉट द टाइम, ये समय नहीं है हमें ही पाठ पढ़ाएंगे प्रभु जी, ये समय नहीं है, 50 साल के बाद हमें ये सब करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 60 साल के लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं। तो जब हम पूछते हैं आप तो 50 साल की बात बोल रहे हो, आप तो 60 साल के हो, you're 60 years old, तो अब तो आप पूरी जिंदगी भगवत गीता के टीचिंग्स पे आधारित कर दीजिए, उसका नॉलेज स्प्रेड करने के लिए हाथ बढ़ाइए। जब हम बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो हम जवान हैं, अभी टाइम है, किसी को पता नहीं कब हमारा टाइम खत्म होगा। We all think the greatest problem in a materialistic man's life is he thinks he has time. कब कौन कहाँ गुजर जाएगा, कब हमारा टाइम खत्म होगा, किसी को ये पता नहीं होगा। मौत बोल के तो नहीं आएगा। तो ऐसे बोलेंगे तो लोग बोलते हैं अरे प्रभु यू आर ऑल वेरी नेगेटिव, पेसिमिस्टिक। तो मैंने बोला अच्छा आप जानते हो आपका मृत्यु कब होगा? क्या आप ये मान के चल रहे हो कि आप मतलब एटर्नली जिएंगे इस बॉडी में? आपके इर्द गिर्द लोग अनेक कारण से मर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप आजीवन मतलब चिरकाल रहेंगे? सो व्हेन वी से दैट यस मेनी पीपल पॉन्डर, फिर भी वो कुछ दिनों के बाद अपना फिर रूटीन लाइफ में चले जाएंगे। सो दिस इज व्हाट युधिष्ठिर said to यक्षा। यक्षा asked him, यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर को पूछा जाता है कि what is the most surprising thing in this world? तो युधिष्ठिर महाराज क्या जवाब देते हैं? The most surprising thing in this world is every day people see in and around them people die, but they lead their life thinking that this will not happen to them. हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। तो ये देखते हुए भी कुछ दिनों के लिए जब कोई वेरी क्लोज रिलेटिव मर जाएगा, वैराग्य भाव आ जाएगा, लेकिन फिर माया के प्रक्षेपात्मिका शक्ति और आवरणात्मिका शक्ति से वो फिर अपना भौतिक रूटीन से अपना जिंदगी फिर चलने लगेगा। The third reason many people give sinful reactions. क्या सिंपल रिएक्शन है? अभी तो मुझे अपना कार्य करना है, अभी तो मेरा कर्तव्य है, परिवार है उनको देखभाल करना है, सो अभी मुझे टाइम उनको देना है, भगवान को बाद में हम टाइम दे देंगे।
This is the cardinal mistake many people make, because they separate spirituality from their personal life. वो समझते हैं कि spiritual life एक अलग life होता है और personal life अलग life होता है. They don't understand that spirituality is supposed to be the order of our life, not one of the aspects of our life. हमारे जीवन का एक हिस्सा नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन का आधार होना चाहिए spirituality. The foundation of our life, the foundation of all our decisions. हमारे जीवन के हर जो हम डिसीशंस लेते हैं उसका आधार भगवत गीता होना चाहिए, उसका आधार शास्त्र, गुरु और साधु होना चाहिए. Again, it should be by the advice of guru, sadhu and shastra. But many people think that this is something that has to be done later on in life. Later on in life हम भगवत गीता पढ़ के क्या मतलब पाएंगे? Of course, any time we read भगवत गीता, it is better late than never. लेकिन जितना हम देर करेंगे, 60 साल के बाद हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता, फिर हम पढ़ के अब हमें समझ में आ गया, अच्छा मेरा जिंदगी ऐसा होना था. अब तो जिंदगी गुजार दी आपने, मतलब भगवत गीता को दूर रख के. अब क्या डैमेज कंट्रोल मोड में जाना चाहोगे? तो intelligent person will not wait for damages to happen. Intelligent person will prevent damages from happening in his life. So prevention is better than cure. इसीलिए बोलते हैं. So अगर मैं परिवार का अभी देखभाल नहीं करूंगा, सिर्फ भजन करते रहूंगा, ये तो पाप हो जाएगा. So I don't want to break family worship traditions also. मेरे घर परिवार में हम शिव जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, हम ये सब छोड़ नहीं सकते. So nobody is asking that you should give this up at this point. वो तो आप जब समझ जाएंगे कि अब आप हाथ की पूजा कर रहे हो, पैर की पूजा कर रहे हो, हम तो बोले पूरा व्यक्ति का पूजा करो ना. भगवान श्री कृष्ण पूरा व्यक्ति है, आप उसका पूजा करो. अब आपने एक अंग को पकड़ लिया, शिव जी एक अंग है, ब्रह्मा जी एक अंग है, गणेश जी एक अंग है, हम एक अंग है भगवान के. हम अपने नेता को वर्शिप करना चाहते हैं, वो भी एक अंग है भगवान का. तो हम ये बोल रहे कि पूरा व्यक्ति का पूजा क्यों नहीं करते? सबका पूजा हो गया. माधव सेवा करने से जनार्दन, जनार्दन सेवा करने से जन का सेवा हो गया, मानव का सेवा हो गया. So it is simple logic which any sane man eventually will understand. और कुछ reasons बोलते हैं. Destruction of family traditions. तो हमारे फैमिली में गेट टुगेदर पार्टी होते रहते हैं, हमारे फैमिली में मछली खाते हैं, हमारे फैमिली में अंडे खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं. तो हम नहीं खाएंगे तो ऑड मैन आउट हो जाएंगे, फिर हमें लोग मतलब बहिष्कार करेंगे, लोग हमें दूर रखेंगे. हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते, सगे संबंधियों के साथ रहना चाहते हैं. अक्सर आपने भी देखा होगा, जब आप भक्ति में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगेंगे तो आपके रिलेटिव्स विल बी द मोस्ट वरीड पीपल. ये वरी क्या है? नॉट जस्ट अबाउट यू. अरे उनको लगता है अरे ये कहाँ फंस रहा है. दूसरा, उनको ये लगता है अरे ये तो फंस रहा है, ये हमें भी खींचेगा, हमें नहीं पढ़ना है इसमें, तो इससे दूर ही रहना है. क्योंकि इवेंचुअली जो भक्त बनेगा वो प्रीचिंग करेगा, फिर ये आके हमारा सर खाएगा, तुम भी पढ़ो, फिर हम इसके जैसे बन जाएंगे. जैसे कि हम कोई डाकू हैं, चोर हैं, इसके जैसे बन जाएंगे बोल के, मतलब घिन्न से बोलने के लिए. व्हाट आर वी, व्हाट आर यू ऑल? यू आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग योर ड्यूटीज. ऐसा नहीं कि परिवार को आपने बोल दिया हाँ मैं भगवत गीता पढ़ लिया, मुझे सब समझ में आ गया, बस सब माया है, दूर रहो मुझसे. कृष्णा इज नॉट टेलिंग दिस. व्हाट इज कृष्णा टेलिंग अर्जुना? कृष्णा इज नॉट टेलिंग ये सब माया है, क्या लड़ रहे हो एक जमीन के टुकड़े के लिए, छोड़ दो ना, वैसे भी छोड़ के जाना है, तुम कौन सा यहाँ पे शाश्वत रहोगे. कृष्णा इज टेलिंग about our that our body is not eternal, we are eternal. But Krishna is also telling क्षत्रिय हो युद्ध लड़ो, और वो भी धर्म के लिए, तो युद्ध लड़ना अनिवार्य है, आपको तो करना है. तो परिवार में हो तो परिवार की देखभाल करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही आपका ध्येय हो गया.
परिवार का देखभाल करना और स्पिरिचुअल लाइफ अलग चीज नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ के आधार पे हमें परिवार को देखभाल करना, तभी हम उसको उद्धार कर पाएंगे। घर में एक भक्त बन जाएगा। प्रभुपाद जी भगवत गीता जब उन्होंने लिखा, उन्होंने बोला अब तो हम इसको दुनिया भर लेके जाएंगे, लेकिन इसके आधार पे अगर एक भी शुद्ध भक्त बन गया तो मैं समझता हूं मेरा इतना जो एफर्ट है वो उसका फल मुझे मिल गया। वो तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे, एक शुद्ध भक्त बन जाए वो दुनिया को बदल सकता है। जैसे कि प्रभुपाद जी, एक व्यक्ति, जरा सोचिए 70 साल के आयु में एक व्यक्ति पाश्चात्य देश में जाके प्रचार कर रहा है और 10 साल में 11 साल में 14 बार दुनिया को बार बार घूम चुके हैं, 14 बार। और आज हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण मूवमेंट, इस्कॉन मूवमेंट घर घर में चिर परिचित है। There's not a single family who doesn't know about ISKCON. At least, if not know fully, नाम तो सुना होगा। तो there is a power of one single pure devotee. तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये पढ़ के लाखों नक्षत्र रात में होने से क्या फायदा है, उससे तो उजाला नहीं होगा। एक चंद्रमा काफी है तो रात के अंधेरे को निकालने के लिए। The darkness of the night can be removed just by one moon. Otherwise, if the moon is not there, shining bright, and there are millions of stars in the sky, the night will remain dark only. So Prabhupada is talking about we are all like the stars. हम टिम 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 करके बुझ जाएंगे, फिर अपने अगले जन्म ये जन्म इसी संस्कृति में पढ़ते रहेंगे। जब अकल ठिकाना आएगा तो एक दिन प्रभुपाद जी की दया से हम फिर हमारे इटर्नल लाइफ में चले जाएंगे। सो फॉर दैट देयर इज 10,000 years, 9,500 years मोर लेफ्ट ओनली। तो जितना जल्दी हो सके हमें प्रभुपाद के आश्रय लेके गोलोक धाम वापस जाना है, भगवान की सेवा करना है। और यदि प्रभुपाद चाहते हैं कि उनके साथ हम भौतिक जगत में रहे अनेक जन्मों में उनका भक्त बन के, तो वो करना है। So we must be fully surrendered to the spiritual master and the spiritual life that he is recommending. और क्या रीजन देते? इनडिसिशन। कृष्ण अर्जुना का फाइनल जो रीजन था वो इनडिसाइसिव था। वो बोल रहा था मुझे पता नहीं चल रहा है मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं आपका अभिशिष्य हूं, आप मुझे बताइए। तो यही हमें भी करना है। हमें पता नहीं चल रहा है क्या करना है, हमें पता नहीं चलेगा जब तक हम गुरु आश्रय नहीं लेंगे। जब गुरु आश्रय लेंगे, गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। अभी हमें जो पता चलना है, जो पते की बात है, वो सब हमें जानना है, गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है और वो कोई ना कोई माध्यम से हमें दिला देते हैं। लॉ स्पिरिचुअल मास्टर प्रभुपाद जी कैन सी थ्रू अस, ही कैन सी व्हाट इज इन अवर माइंड। कभी कभी हमें अपना ही मन समझ में नहीं आता, बट प्रभुपाद दिव्य आत्मा है, दिव्य पुरुष है, वो जानते हैं हम कौन है, हम क्या है, हमारे अंदर क्या है, बाहर से हम क्या दिखाते हैं। एवरीथिंग ही विल नो। सो ही विल आल्सो नो हाउ टू करेक्ट अस एंड ही विल इवेंचुअली डू दैट। सो पेशेंटली वी हैव टू जस्ट फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। क्या इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया? द फॉरमोस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर कलियुग इज फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। आप ये हो, वो हो, we are horrible people, we are sinful people, all that is there. That is why we are still here in this material world. So Prabhupada ji will give us a program where by following that through the sadhana process, we can slowly cleanse ourselves of all the ashuddhi, of all the kalmash that is there in our। तो जीवन में हमारा कलमश है, उसको धोने का यही एक उपाय है, गुरु का आश्रय लेना और गुरु के वाणी का परिपालन करना। So when we cannot decide, then we go to the superior, not try to take our own decision. तो ठीक वैसे ही हाँ, जीवन में क्या करना है, कैसे रहना है, आपको पता नहीं चल रहा है तो भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, भागवतम का अध्ययन कीजिए, जो
एक प्योर डिवोटी श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। 2 दिन पहले जो प्रश्न आपके अंदर था, आप उसका उत्तर भगवत गीता आज पढ़ रहे हैं आपको मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, सुबह का कोई प्रश्न आया, जिंदगी का कोई इंसिडेंट हो गया, फिर आपको कुछ लगा, फिर दोपहर में आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, प्रभुपाद जी का कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो, आपको आंसर मिल रहा है। हाउ इज इट हैपनिंग? बिकॉज प्रभुपाद नोज where to take us, where to lead us. So automatically we will come to that instruction. So that is the power of Vani of Guru. So this we must understand. So in Bhagavad Gita we come to know about God realization. कैसे हम भगवान को जान सकते हैं, ये भगवद गीता और अन्य शास्त्र से हमें पता चलता है। क्योंकि जब मुझे भगवान का भक्त बनना है तो मुझे अपने आप को जानना है, मुझे भगवान को भी जानना है, और हमारे संबंध को जान के उस संबंध को बरकरार कार्य रूपी मुझे रखना है। सो आई शुड नो हु एम आई शुड ऑल्सो नो हु गॉड इज, आई शुड नो व्हाट इज अवर रिलेशनशिप, एंड आई मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। सो देयर आर 3 stages in realization of Lord. We all read that before. The example Prabhupada gives is sun rays, the surface of the sun and the globe of the sun God himself. So Brahman realization, Paramatma realization, Bhagavan realization, highest realization, Bhagavan, which includes Paramatma and Brahman. What is Paramatma? It is the localized aspect of Bhagavan. और जो हर हृदय में परमात्मा बन के जो बैठे हैं वो भगवान का एक अंग है। देन ब्रह्मन रियलाइजेशन, जो ब्रह्म ज्योति है वो तनुभा, भगवान की तन की वो क्या बोलते हैं रोशनी है, द ऑरा ऑफ द लॉर्ड्स बॉडी, दैट इज ब्रह्मन। तो ब्रह्मन रियलाइजेशन इज व्हाट? थ्रू ज्ञान एंड कर्मा। तो कर्मा योगा फर्स्ट 6 chapters, ज्ञान योगा लास्ट 6 chapters, बीच में भक्ति योगा इज देयर। तो कर्म योगा ज्ञान योगा से ब्रह्मन रियलाइजेशन हम कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल क्या है? जैसे कि बिल गेट्स को समझना अपने कंपनी पॉलिसीज से, तो कंपनी के पॉलिसीज से हमें जानकारी मिलेगा थोड़ा बहुत बिल गेट्स के बारे में, उनके कंपनीज के पॉलिसीज में, बिकॉज वो अपना पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होता है। देन परमात्मा रियलाइजेशन, ये ध्यान और अष्टांग योग से होगा, जिसके बारे में 6th chapter में भगवान बताते हैं हमें। तो व्हाट इज एनालॉजी हियर? बिल गेट्स के तुलना करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और नोइंग बिल गेट्स एज वन ऑन वन, जब हम हमने सामने बैठ के बिल गेट्स को जानते हैं, ये परमात्मा रियलाइजेशन है, बिकॉज परमात्मा इज सिटिंग इनसाइड माय हार्ट। एंड इंटरेक्शन ओवर दी कंप्यूटर, सो कंप्यूटर के ऊपर हम लेके ऑनलाइन क्लासेस हम ले रहे हैं, उससे इंटरेक्शन हो रहा है, तो लोकलाइज्ड एस्पेक्ट से बिल गेट्स को जानना। नाउ व्हाट इज भगवान रियलाइजेशन? knowing the Lord fully as he is completely, which includes his Paramatma and Brahman feature. So that is possible by Bhakti Yoga. Chapter 7 to chapter 12 is Bhakti Yoga, the cream of Bhagavad Gita. तो सबसे कीमती नॉलेज बीच में छुपा गया, बिटवीन, जैसे कि ऑयस्टर, आउटर लिड, इनर लिड, इनसाइड इज द पर्ल, वैसे ज्ञान कर्म योग, ज्ञान योग, और अंदर छुपा है मोती, सबसे कीमती मोती भक्ति योगा का मोती। सो इसे हम भगवान बिल गेट्स, इट्स लाइक वी नो बिल गेट्स पर्सनली नाउ, so we know not only him personally, when we know him personally we also know about his company, we also know about him one on one, we also know about many family features of him. So तो इसमें कंपनी के बारे में भी जानकारी हमें मिलेगा, उनके परिवार के बारे में भी हम जान जाएंगे जब हम बिल गेट्स को जान जाएंगे। सिमिलरली जब भगवान श्री कृष्ण को जान जाएंगे, फिर उनके परिवार के बारे में आप जान जाएंगे, उनके कार्यों के बारे में आप जान जाएंगे, इस जगत के बारे में आप जान जाएंगे। सो द ग्रेटेस्ट कंपैशन वी कैन शो इज टू कंपैशन टू द सेल्फ। नो, दिस इज नॉट बीइंग सेल्फिश, और सेल्फिश इज समथिंग एल्स, सिर्फ मेरे लिए, खुद गर्ज, सब मेरे लिए है, मुझे ही चाहिए, किसी और को नहीं मिलना है, so that is selfishness. Compassion to the self. What is the real self?
Atma, compassion to what we are, really, the Atma. So that is called as self-realization, Atma Sakshatkar. तो भगवद गीता यथारूप आत्म साक्षात्कार विज्ञान है, आपको अपने आप से परिचित करने वाला ग्रंथ है, आपको भगवान से परिचित करने वाला ग्रंथ है. So Arjuna is apparently choking under pressure at the start of the war. तो जीवन के संघर्ष में जब हम many times we will not be able to take the right decisions at the right time because we choke under pressure. So Arjuna also is going through a similar calamity in his life where he is not able to decide, where he is tad viruddha is speaking, viparita is speaking. जो जो भगवान नहीं चाहते हैं वही एक बोल रहा है अर्जुना. So this is a typical mindset when we are in trouble. So our intelligence takes a back seat. We start thinking emotionally. We start thinking, in a very myopic way. हमारा सोच छोटा बन जाता है. तो बस हमें उस प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस रहता है. When we look at problem from a higher place, from a superior position, through the eyes of Shastra, Jnana Chakshusha. What is Jnana Chakshusha? Jnana Chakshusha means seeing the world through the eyes of Krishna consciousness. Being Krishna conscious and seeing the world through such a vision. That is possible by becoming Krishna conscious. We can become Krishna conscious when we know Krishna. We will know Krishna when we can understand his instructions from Bhagavad Gita, wherein he introduces himself, where he also introduces you to yourself, and where he introduces what you must do in your life. So 5 things Bhagavad Gita can give us, or the ways it can be used. Quickly, I will summarize this. Why we should read Bhagavad Gita. It could also be the 5 reasons. 1. Answers to unsolved questions which we always wanted to know. Bhagavad Gita से आपको मिल जाएगा. जो आपको प्रश्न था जिंदगी के बारे में, जिसके लिए आपको कोई ठोस उत्तर नहीं मिला था, कन्विंसिंग उत्तर नहीं मिला था, वो भगवद गीता यथारूप से आपको मिल जाएगा. दूसरा बेनिफिट क्या है भगवद गीता यथारूप पढ़ने से? इट रिमूव्स अस फ्रॉम ड्युअलिटीज. द्वंद्व से हमें निकालता है. टू डू और नॉट टू डू, इसका कोई क्लैश ही नहीं होगा. वेरी क्लियर वी विल बी. हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और हमें कुछ पता नहीं चल रहा है तो हमें सुपीरियर से जाके इंस्ट्रक्शन लेना है. ये भगवद गीता भी सिखाता है. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. क्यों? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम. ज्ञानी न तत्वदर्शिना. जो ज्ञानी है, जो सब देख चुके हैं, उनके पास जाइए. जो भगवद गीता को संपूर्ण तरीके से जानते हैं, उनके पास जाइए आप एडवाइस लेने के लिए, और खुद पढ़िए भगवद गीता. तीसरा रीजन है, इट इंक्रीजेस आवर डिटर्मिनेशन एंड माइंड पावर. हमारे धृति को, हमारे मन का शक्ति को वो और स्ट्रेंथन करता है भगवद गीता. गॉड इज टेलिंग अस दैट ही लव्स अस. भगवद गीता पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमें भी कोई ऐसा शक्ति है जो शुद्ध प्यार करता है, नॉट दी मतलबी प्यार ऑफ दिस वर्ल्डली पीपल. फिफ्थ रीजन इज इट्स ए सेल्फ हेल्प मैनुअल. आप अपने जिंदगी को संभाल सकते हैं, बट अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, साधु एंड शास्त्र. सो भगवद गीता प्लेज द रोल ऑफ ऑल दिस. इट इज गुरु, इट इज साधु एंड इट इज शास्त्र ऑल्सो. भगवान खुद जगत गुरु बन के उपदेश दे रहा है. फिर साधु जो हमारे भौतिक जगत में गुरु हैं, जो हमारे शाश्वत गुरु, एटर्नल गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद जी, तो उससे हमें मिल रहा है. और वो गुरु भी है और साधु भी है इस सिचुएशन में, इन दिस एनालॉजी. एंड देन शास्त्र, भगवद गीता शास्त्र है ही. सो वी एंड टुडेस डिस्कशन एट दिस नोट. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे.